Hello, good morning. Hope you are doing well in this pandemic time. So, first of all, welcome to the talk on Madame Curie and her radioactive child on the occasion of the commemoration day of the Madame Curie, organized by Universe Science Forum. My name is Jahan Thakkar. I am co-convener of the Universe Science Forum. So, our today's speaker is Mr. Jay Patel. He has recently graduated from the St. Xavier's College, Ahmedabad, in the physics subject, and he's a batchmate of mine and is a good friend of mine. He has a great experimental skills. Let me tell you. He has already done one year research project in Institute for Plasma Research, Gandhinagar, on the topic study of X-ray fluorescence between zero point 0.1 kiloelectron to 13 kiloelectron volt. Uh, he has also done some good online courses from IIT Kanpur. He has computational skills of data analysis in MATLAB and Origin and Python. He's also recipient of the prestigious Inspire scholarship for higher education, which is a scholarship for undergraduates and postgraduates provided by Department of Science and Technology, Government of India. Sorry. Uh, if other hobbies of him are, he's also a good singer and good musician. He also plays guitar and. He's also very good at performing experiments. He won the third prize in the National Anveshika Experimental Skill Test, which is organized by IAPT and the IIT Kanpur jointly. So let me invite today's speaker to you. Yes, over to you, Jay. Thank you, Mr. Jahan, for this great introduction. Uh, Thank you, USF, for providing me this opportunity. I shall start with the presentation. And guys, if you have any questions, आपको जो भी questions हो, you can write down in the chat box. Uh, Dilip Bhai will take those questions to me, and I will answer those questions. You can ask at any time. आप कभी भी पूछ सकते हो between the talk. Okay. So let us start. Is my screen visible? Hello. Yes, yes, it is, Jay. Yes. So again, welcome all of you. So I'm going to give a talk on Marie Curie and her radioactive child. ये टाइटल itself ये सजेस्ट करता है कि ये कुछ एक एक माँ और एक बेटे की कहानी जैसा है एंड आई होप इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर द लाइफ ऑफ मैरी क्यूरी. उन्होंने कैसे सफ़र किया, उनका ग्रेजुएशन, उनकी स्टडी, उनका रिसर्च, उनकी पर्सनल लाइफ, और बाद में मैंने ये ट्राई किया है कि मैं उन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए कैसे किए और उनके उसके पीछे की स्टोरी क्या थी और स्ट्रगल्स क्या थे और उसके बाद का उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. और ये थोड़ा ब्लेंड होगा हिस्टोरिकल और फिजिक्स का के टॉपिक्स का. मतलब पूरा फिजिक्स नहीं होगा, इट विल बी हिस्ट्री ऑल्सो. आई हैव इंक्लूडेड पोएम्स ऑल्सो, सो आई होप इट विल बी गुड फॉर यू टू. So the very first quote, that nothing in life is to be feared, it is only to be understood. ये सजेस्ट करता है कि लाइक अगर कुछ लाइफ में फियर्स हो तो उसको अगर आप जान लो, पहचान लो, तो वो फियर फियर नहीं रहता है. इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्व. सो डरने की कोई लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जिससे हम फियर होना चाहिए किसी का. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टूड एंड ट्राई टू ओवरकम इट. So, okay. So this is the title. We shall start with his life, with her life.
सो पहले हम उसकी बात करेंगे उसका अर्ली एजुकेशन। सो उसका ओरिजिनल नाम है मारिया सेलोमिया स्क्लोडोव्स्का। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 का हुआ था, 1867 को हुआ था। और वो सबसे यंगेस्ट थी उनके, मतलब उनके फाइव बहन थे। एंड शी वाज बोर्न इन वॉर्शो, पोलैंड। वो तब वॉर्शो इट वाज रूल्ड बाय रशियंस। So, as I highlighted here, she is the girl Maria Solomius Sklodowska. She was talking about her behavior and the nature of her. So she was very fearless, straightforward, and also lover of science. वो तो आपको बाद में टॉप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि how her love overcome her fears and led to great discoveries. उनके फादर का नाम लादिस्लाव व्लादिस्लाव स्क्लोडोव्स्का, और वो मैथ एंड फिजिक्स टीचर थे। और उनके मदर ब्रोनिस्लावा स्क्लोडोव्स्का, वो हेड मिस्ट्रेस थे एक स्कूल। अभी उस ज़माने में क्या था कि वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं था कि वो स्टडी कर पाए या कुछ पढ़ पाए। तो लेकिन ये जो उनके जो डॉटर थे, लाइक मारिया एंड अदर लाइक उनकी सिस्टर, उनको स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो लोग एक ऐसी स्कूल में पढ़े, लाइक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी ऐसा बोलते हैं उनको। उनके लाइक ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो अंडरग्राउंड चालू हुई थी फॉर दिस लाइक एजुकेटिंग द वुमेन्स। लाइक ये थोड़ा टॉप सीक्रेट जैसा था कि उनको ऐसा फ्रीडम नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन वो सीक्रेटली वो क्लासेस थे उनके लिए। और वो उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी जो इनिशियल एजुकेशन था वो ऐसे उन्होंने पढ़ा था। तो ये वो पहले तो फ्रेंच लिटरेचर, हिस्ट्री एंड पोएट्री में मास्टरी उन्होंने की थी उन्होंने अर्ली एजुकेशन में। बाद में उन्होंने अपने फादर और मदर के साथ थोड़ा फिजिक्स और मैथ्स में भी थोड़ा उन्होंने इनिशियल लेवल्स में पढ़ाई की थी। बात ये थे मैरी क्यूरी। ये मैरी क्यूरी जो नाम था वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये उन्होंने एक उनको थोड़ा थोड़ा फ्रेंच साउंड करना था, क्योंकि शी वाज गोइंग टू बी she want to go in Paris and that all. So she changed her name to Mary Curie, like Mary. So from Maria she changed to Mary, and Curie she became after getting married to Pierre Curie. अर्ली लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इफ़ यू सी लाइक उन्होंने बहुत फेस किए प्रॉब्लम्स फॉर गेटिंग एजुकेशंस, because it was restricted on those days. And also her mother was diagnosed with tuberculosis, and soon it led to death. Or that was a great grief for Mary Curie, as she suffered like a kind of depressions. एंड उनका फेथ जो था गॉड में वो बहुत टेम्पर्ड हो गया था। मीन्स सी लिटरली लॉस्ट फेथ इन गॉड, एंड सी specifically disliked going to the hospital. She hated going to the hospitals because every time she go to hospital, she remember the days that her mother have spent in those in that bed and that all, and she suffered a great grief. उनको बहुत दुख होता था, इसलिए वो हॉस्पिटल से दूर भागते थे। बाद में मतलब कभी हॉस्पिटल जाने की इच्छा नहीं करते थे। और बाद में ये सब डिप्रेशन और वो सब जो उन्होंने फेस किया लाइफ में, उसमें से बाहर आने के लिए साइंस ने बहुत हेल्प की। तो साइंस वाज अ हीलिंग टूल। शी कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 15, एंड शी यूज्ड एज अ ब्राइट चिल्ड्रन। शी वाज फर्स्ट इन हर क्लासेस। हायर एजुकेशन, और ये पूरा अगर आप देखो उनके फैमिली में भी उनके फादर और उनके मॉम जो थे वो टीचर्स थे, so obviously उनको बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई में। और she wished for the higher educations, more educations in that fields. So उनको पेरिस जाना था, so she wanted to go to Paris because in that Warsaw and Poland, as I talked, there was hardly any education for women. But that was the not case in Paris. It was allowed.
बट उनके जो सिस्टर थे ब्रोनिया, उनके पहले वो नहीं जा सकते थे क्योंकि शी वॉज एल्डर, फर्स्ट पॉइंट शी वॉज एल्डर एंड शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड देर वॉज नो एनी मनी टू फंड बोथ चिल्ड्रंस। उनके पास, उनके फादर और मदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोनों को फंड कर सके। सो Mary has to wait for at least like 6 hours, and she worked at 17. Like as we see, her secondary education was completed at 15. 17, 17, started working as a governess to pay for her sister's education. So this shows that how kind she was and how generous she was. Like she worked as a governess to pay for his sisters for her sister's education. सो दिस कंटिन्यूड, ये सिलसिला चालू रहा और 6 साल बाद उसको चांस मिला कि अभी वो पेरिस जाएगी और 1891 में फाइनली सी लैंडेड टू हर ड्रीम लैंड पेरिस। नाउ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि लाइक 6 ईयर बाद वो पेरिस तो आ गई, लेकिन वो 6 साल में उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने ये 6 सालों में ये किया कि जो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मास्टर किए थे। सी स्टडीड इन हर स्पेयर टाइम एंड सी मास्टर्ड ऑल दोज कॉन्सेप्ट। सो वो उनको बाद में बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट करने वाला है। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू पास द एंट्रेंस एग्जाम एट द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री in her college and Sorbonne University. So she was the. I would also like to mention that she was the only woman in the Sorbonne University to have education at first and pass this entrance exam. So she signed her name Maria, as I told you before, to look more like French. तो थोड़ा फ्रेंच साउंड करे और अच्छा लगे, इसलिए उन्होंने मारिया ऐसा नाम साइन करना चालू कर दिया था। So she was also awarded with the Alexandrovich Scholarship, which helped her to complete her graduation. And soon she graduated in physics as well as mathematics by 1894. So you can see 3 साल में उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। और कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। शी वाज इन द पेरिस, शी वाज लाइक समटाइम्स वाज used to starve and she was not able to feed her completely. वो कुछ कोई बार ब्रेड पे भी काम चला लेती थी, ब्रेड एंड मिल्क, एंड समटाइम्स वो बेहोश भी हो जाती थी। तो the situation was poor, and though after all that struggles, she managed to complete her graduations and studies because there was a true love for science, and when there is a love for anything, there is no excuses. So she was completely focused, वो completely focused थी और उन्होंने अपना graduation complete किया। So this was the level of dedication that Marie Curie showed, and therefore she was able to like master in this all graduations. अभी you can say a turning point in her life was in the life of Marie Curie was to meet Pierre Curie, which was who was going to be her future husband too. So the thing is, when Mary became Curie, so these were not only lab partners and also the life partners. The thing is, like Mary was a graduate student under her mentor was Gabriel Lippmann, and she was studying properties of magnetism and that all. And she was not provided with like good equipments, and she does not have lab to study her own things, and therefore उनको कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इनके जो मैरी का मतलब ग्रेगोयर लिपमैन, उनके जो कलीग थे मैरी क्यूरी के, उन्होंने ये उनकी मुलाकात पियर क्यूरी से करवाई और बाद में इट वाज लाइक इलेक्ट्रिक फ्रॉम स्टार्टिंग। उनके बीच कुछ से पहली नज़र में ऐसा कुछ था जो उन्होंने दे बोथ वर कैप्टिवेटेड विद फॉर ईच अदर, एंड soon they fall in love and they got married in 1895, and oh la la, so that was the thing. So, as I said, her journey in science started as a research contract under Gabriel Lippmann on magnetism in 1893.
She also published a paper in magnetic properties of steel. उनके पास ब्रिलियंस था, लेकिन वो मैन डोमिनेटेड साइंटिफिक सोसाइटी में उतना एडमायर्ड नहीं होता था क्योंकि सी वॉज वुमन। सो ये एक और स्ट्रगल था जो उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में। और पियर क्यूरी वो ऐसा अजूबा उनके लिए साबित हुआ जो उनको लाइक बहुत आगे सपोर्ट मिलने वाला था उनको। So Pierre Curie was a great helping hand to her, gave her space to experiment her thoughts. So something in her which captivated interest of him in her. Soon both started working together and fall in love and married in 1895. तो ये थी उनकी पर्सनल लाइफ जो पेरिस आने के बाद उनका स्ट्रगल, उनका ग्रेजुएशन और उनके बाद पियर क्यूरी से मुलाकात और उसके बाद उनसे लाइक कोलैबोरेशन और शेयरिंग द लैब्स और वो सब, और बाद में शादी। एंड देन at that time, there was so much research going on X-rays. Like Wilhelm Röntgen ने X-rays की डिस्कवरीज की थी, तो वहाँ वो समय पे पीक पे था X-rays का। मतलब सभी जगह X-rays चलता था, सब साइंटिस्ट वर फोकसिंग ऑन X-rays and they were dealing with how to they were finding the properties and uses of X-rays and that. सो मेरी का जो एक ब्रिलियंट आइडिया था या ब्रिलियंट स्टेप जो हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा ऐसे ऐसे एरिया में फोकस किया जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम थी। ऐसे मतलब कंपटीशन मतलब जहाँ पे वर्क बहुत कम हुआ था और देयर वाज अ नीड ऑफ डूइंग सम वर्क एज पर मैन। तो हेनरी बेक्वेरर जिन्होंने रेडिएशंस की लाइक ऐसा पहले सबसे पहले उन्होंने शोध की थी कि ऐसा एलिमेंट्स में से ऐसे रेडिएशंस है निकलते हैं जो हम कुछ एलिमेंट्स देते हैं, विच ही टर्म्ड एज यूरेनिक रेज, यूरेनियम, जो photographic plates पे impressions create करते हैं। So this one was very like strange in those days, like how can element shoot rays like X-rays and create something like this। तो ये इसमें उनको इंटरेस्ट आया मैरी क्यूरी को। She soon developed interest in this field and took this as her graduate project also. After that, do something in that। और और लैब तो उनको पियर क्यूरी ने प्रोवाइड की थी, तो शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। सो दिस आई टोल्ड लाइक इम्प्रेशंस जो क्रिएट होते थे, तो ये ऐसे एक प्लेट थी, उसके ऊपर एक मेटल रखा था और उसके ऊपर यूरेनियम रखा था। ऐसा जो मेटल में से पास नहीं हुआ, लेकिन बाद उस पेपर पे एक्सरेज मतलब यूरेनिक रेज चले गए और ऐसा इम्प्रेशंस दिखा। तो ये जो इमेज है, इम्प्रेशंस लेफ्ट बाय यूरेनिक रेज फ्रॉम यूरेनियम ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट केप्ट इन दिस ड्रॉवर। तो तो ये जो मेटल था वो मैट्रिक्स मेटल था, वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा था, which absorbed some radiation and the rest of the part of the plate was yeah, like impressions were left on that plate. So something like this have been took place, like यूरेनियम था, पेपर था और प्लेट था, ऐसे impressions ऐसे हो गए। So now we shall discuss a new chapter in her life, that was the search for the unknown। सो ये पेक्युलर वो पजल था कि ये मिस्टीरियस रेज है क्या जो यूरेनियम में से निकल रहा है। तो उन्होंने उन्होंने थोड़ी रिसर्च की, बट ही लेफ्ट अब्रप्टली। I felt that it is unexcited and it is no more of use, so he left it that topic like चलो जाने दो, कुछ काम का नहीं है, we will not touch this part। लेकिन ये मैरी क्यूरी को इसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया, and she really started exploring the properties of this uranium, especially to measure the electricity created। Now, the term electricity created is like ये जो यूरेनिक रेज थे, they had the property of ionizing the surrounding air। जो air थी बाजू की, the rays had the rays were such an high energy that it were capable
to ionize the atoms of air, molecules of air, and therefore a kind of electric connection or ionization channel. The ions were conducting electricity from one point to another point. So it was kind of electric current was generated between the points. So we discussed this in detail. So we don't have an effective instrument nor in any laboratory. So funding support was there. और फंडिंग सपोर्ट भी नहीं था, तो एज आई डिस्कस पेयर क्यूरी सेड अ लैब टू हर एंड टू फाइंड सम प्लेस. और पहले मेरी क्यूरी ने ना बोला था कि नहीं आई कैन नॉट डू दैट, बट शी इवेंचुअली एग्रीड विद पेयर एंड दिस सेड द लैब. Pierre Curie was doing a research on his own like field, like crystals and piezoelectric crystals. But soon, as Marie Curie was in the like doing research in uranium and its properties, तो उन्होंने भी बहुत like Pierre Curie को भी बहुत इंटरेस्ट आ गया था उसमें, और उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और मेरी क्यूरी के साथ फुल डेडिकेशन के साथ काम करने लगे Pierre Curie. और ये जो मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएटेड का उसको मेजर करने के लिए, तो उनको एक हाई सेंसिबल लाइक एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए था. तो वो इंस्ट्रूमेंट पियर क्यूरी ने प्रोवाइड किया था. खुद की डिस्कवरी थी, पियर क्यूरी ने इन्वेंट किया था और उसका नाम था क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर. So this was an original instrument created by Pierre, which is capable of measuring a microscopic amount of small ionization currents produced by the sample. So ये sample कहाँ पे था, ये currents कहाँ पे हुए, क्यों measure किया, ये precision क्यों चाहिए, ये सब मैं भी next slide में discuss करूँगा. So this was the brilliance. Pierre Curie, this is the man behind this instrument. This was another model, very advanced. And this was a very crucial instrument for the discoveries that Marie Curie was going to make. So we'll discuss the working of the instrument. As I said, the ionic rays has the capability of ionizing the air, which can lead in leaking of electric current between two plates. Now, which are the two plates? So ये sample chamber था. इसमें ऐसा एक कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे वो सैंपल रखेंगे प्लेट. तो यूरेनियम में ऐसे सैंपल रखा है और ये ऐसे कनेक्टेड है, एक कनेक्शन यहाँ पे, और दूसरे यहाँ पे से उन्हें एक बैटरी से चार्ज दिया है. तो ये ऐसा कनेक्शन था, ये सैंपल चैम्बर था. और ये यूरेनियम है, तो यहाँ से जो यूरेनिक रेज निकलते थे, तो ये यहाँ की जो एयर थी वो उसको लाइक आयोनाइज करते थे, और उसकी वजह से ये यहाँ से करंट यहाँ पे जंप कर रहा था. दिस वॉज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल, दिस वॉज कनेक्टेड सेपरेटली, ये ग्राउंड से कनेक्टेड था और यहाँ से करंट दिया जाता था. तो ये सर्किट ऐसे इधर ये कनेक्शन किए बिना कंप्लीट हो रही थी. सो दिस वॉज अ प्रूफ दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन दिस टू प्लेट्स आयोनाइजेशन की वजह से. और ये प्रॉपर्टी यूरेनियम में ही थी. अब अगर आप कार्बन रख दो यहाँ पे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. कार्बन में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्योंकि हम देखेंगे बाद में ये इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया ही है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं. सो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, तो ये जो यहाँ पे है, तो ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल था. इसको क्या अगर आप स्ट्रेच करोगे बाय अप्लाइंग वेट, तो ये वेट है यहाँ पे. अगर आप वेट अप्लाई करोगे और इसको स्ट्रेच करोगे और उसको रिलीज करोगे, तो वो रिलीज और स्ट्रेचिंग और रिलीज में एक चार्ज जनरेट होता है. The charge is generated, which is then used to offset the amount of charge generated by the sample and examination. So ये क्या है, एक चार्ज यहाँ से जनरेट हो रहा है, एक चार्ज यहाँ से जनरेट हो रहा है. ये दोनों चार्ज ऐसे जनरेट किए जाते थे
कि ये एक दोनों को ऑफसेट करते थे, और ये जो गैल्वेनोमीटर था बैलिस्टिक जो यहाँ से, तो यहाँ पे जीरो रीडिंग पे ये रहना चाहिए। ये अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो ये शिफ्ट होगा इस साइड, इसका चार्ज ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगा और अनबैलेंस होगा। तो लेकिन जब ये आयनाइजेशन जो चैम्बर है जहाँ पे सैंपल रखा है, सैंपल चैम्बर, इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है और वो चार्ज जो क्रिएट हो रहा है और ये चार्ज दोनों जब सेम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ पे ऐसे जीरो रीडिंग आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमीटर था। सो दिस वाज द बेसिक setup by which they want to measure the ionization capability of the sample. I will repeat, they want to measure the ionization capability or the amount of radiation that uranium is giving off, activity. They will call as activity of a element, uranium or any other element that which was present by this method. Like कितने जल्दी they were able to uh, balance the pen. So time taken to offset both currents and to get the zero reading on the scale determines the activity of the sample. तो ये सैंपल की एक्टिविटी उन्होंने ऐसे मेजर की। हायर द टाइम, तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। दिस हायर द टाइम लोअर इज द एक्टिविटी एंड लोअर द टाइम हायर विल बी द एक्टिविटी। वी डिस्कस दिस राइट नाउ ओनली। सो अगर समझो कि आपने एक सैंपल चैम्बर में रखा, नाउ अगर उसकी एक्टिविटी लो है तो उसके आजू बाजू की जो एयर है या उसको वो आयोनाइज कम करेगी, या फिर ऐसे करेगी कि आपको एक्सेट एज अ मेजरमेंट, एक्सेट इतनी सेंसिटिविटी आपके हाथ में नहीं होती कि आप उसको फटाफट उसको बैलेंस कर पाए, क्योंकि वो बहुत it will not be a continuous ionization or something like that, so you will not able to balance it very soon. सो अगर एक्टिविटी कम होगी, वो सैंपल जो है वो रेडियोएक्टिव कम होगा, वो एक्टिविटी उसकी कम होगी, तो उसको हायर टाइम लगेगा। और जिसकी लोअर एक्टिविटी, लोअर द टाइम जिसका होगा, जिसका टाइम जिसमें कम लगेगा, फटाफट बैलेंस हो जाएगा दोनों चार्ज, तो उसकी एक्टिविटी हायर होगी। तो इस वैसे उन्होंने ऐसे टाइम मेजरमेंट कर करके उन्होंने ये सब किया था, मतलब एक्टिविटी मेजर की थी। Higher radiation, higher ionization and easy to offset. This point is also important. Higher radiation, ज़्यादा रेडिएशन होगा, higher ionization क्रिएट होगा और easy to offset होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर बैलेंसिंग विद द ह्यूमन हैंड। ये इसका स्कीमेटिक है जो मैंने आपको बोला था। ये वेट यहाँ से खींचेंगे, ये स्ट्रेच होगा, एक चार्ज जनरेट होगा, और ये जो दूसरा चार्ज यहाँ से, ये सैंपल की वजह से ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है, यहाँ से बैटरी दी है और ये ग्राउंड कनेक्टेड है, और यहाँ से दूसरा चार्ज ये यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से जो क्रिएट हो रहा है चार्ज ये यहाँ जा रहा है। ये दोनों चार्ज ऐसे क्रिएट हो गए यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, ये जीरो रीडिंग पे शो करेगा। तो ये पूरा स्कीमेटिक्स है ये ऊपर के सेटअप का। तो Dilip bhai, if there is any question, I will like to take at this point, because I think there may be some doubts here. Are there any questions? Hello. Hello. हाँ जय, एक क्वेश्चन है। तो हाँ बोलो। मैडम पुरी का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वहाँ यहाँ तक कि खाना पीने का भी तकलीफ था। उस टाइम में उसने उसका आविष्कार था रेडियम का, उसके लिए पैटर्न निकालने के लिए मना कर दिया था। ये बात सही है? हाँ हाँ, उन्होंने पैटर्न जो वो तो डिस्कवरी के बाद हुआ था कि अगर उन्होंने रेडियम डिस्कवर कर दिया था, लेकिन सी डिड नॉट पैटर्न डेट इट। सभी जगह रेडियम यूज हो रहा था, लाइक पेंसिल के और लाइक आप साबुन पे या अगर उसके पड़ी मतलब उसके पैकेट पे सभी जगह पे रेडियम बहुत डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन सी फाउंड दैट इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड सी डिड confronted that it is my element, it is a discovery, it was not invention. So she thought I will not patent it, and उन्होंने patent नहीं किया था ये रेडियम, वरना वो बहुत लाइक ये अमीर हो जाते। लेकिन she did not thought that I should patent it.
उन्होंने पैटर्न नहीं किया था। ये बात तब की है जब उनके पास ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि तब पियर क्यूरी भी थे उनके पास और नामना भी थी। ऑफ कोर्स उन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था और बाद में ऐसा वो ऐसे डॉक्टरेट भी उन्होंने ले लिया था। शी वाज आल्सो प्रोवाइडेड विद द डॉक्टरेट एंड शी हैड फंड्स। सो ये बात के बाद शी डिड नॉट पैटर्न, रेडियम उन्होंने पैटर्न नहीं किया। तो और कोई डिड आई दूसरा, आंसर द क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर चैट बॉक्स में और किसी ने दे दिया है। तो क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी से पहला महिला थे कि उसको 2 नोबेल प्राइज मिला था। उसका आंसर दे दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट महिला थे वो नोबेल प्राइज लेने वाले। We will discuss this. We will discuss that part also in the later half. Uh, as I am going to discuss her achievements, I will discuss that. हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं है। So if I hope this working is clear. सिंपल है, यहाँ पे उन्होंने चैम्बर में ये सैंपल रखा, उसकी एक्टिविटी से कारण जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हुआ और इसके वेट के खींचने और रिलीज करने से जो चार्ज क्रिएट हुआ वो दोनों ऑफसेट हो जाए तो यहाँ पे 0 रीडिंग आएगी। और उन्होंने देखना चाहते थे कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और कितनी है। सो देयर वाज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट दैट डिड बोथ। दे टर्म दैट ओके इतना होगा, इतना टाइम होगा तो उसको एक्टिविटी इतनी होगी, इतनी होगी। देयर वाज अ होल कैलिब्रेशन पार्ट which I'm not going to go into details, but ये ऐसा था, उन्होंने उनके बेसिस पे उन्होंने एक्टिविटी डिटरमाइन की थी। अभी उन्होंने क्या किया, she was not aiming to have a like great discovery। उनको ऐसा मगज में कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़ी डिस्कवरी करूंगी और मैं like I will change the world। She was only like was looking for a bachelor thesis, a graduate thesis, something like that। She will take all the elements like आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स से चालू करेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सभी एलिमेंट्स के सैंपल्स लेके शी विल ट्राई टू मेजर द एक्टिविटी। उनको ये भी नहीं पता था कि सिर्फ यूरेनियम ही ऐसा एक्टिविटी दे रहा है। शी टुक ऑल द एलिमेंट्स एंड एट लास्ट शी कंक्लूडेड कि नहीं यूरेनियम ही दे रहा है। और बाद में उनको ऐसा भी पता चला कि थोरियम भी ऐसी एक्टिविटी दे रहा है। और टू बी क्लियर, ये जो यूरेनियम था वो पिच ब्लेंड करके एक और है। We will discuss this now. Pitch blend later. Let me go after in the later part. We will discuss this later. So उनको बाद में उन्होंने टर्म दिया रेडियोएक्टिव और वो सब, तो ऐसा था। तो she was only looking for a good systematic study of all the elements, like कौन देता है कौन नहीं दे रहा है प्रॉपर्टी वो सब। तो वो एक स्टडी चल रहा था। These were the brilliance, man and woman of brilliance, the Pierre Curie and Marie Curie. Here we can see her hand, which is releasing and pressing and releasing the crystal. So she was looking at the point, and in one hand she had a stopwatch, in other hand she had a pen, and eyes were focused scale. So it was lights, camera, and action. Combination of this, and this required a very good and great amount of accuracy and precision, because it is your delicacy of your hand and your timing। like आपके स्टॉप वॉच कितना कंट्रोल कर रहे हो, इसके मुताबिक कंट्रोल होता है कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। So this I wrote a poem for that. I hope you like it। So stopwatch in one hand and weights in another, and eyes like an eagle। High precision as well as accuracy with a dual but single। ये dual थे, but ये दो लोग थे लेकिन they were so harmonized, they were so together that it was like a single thing, a single person। They were working like that। The level of dedication they had and love for each other could overcome any barriers। So it was days after days, moments were spared, embarking for good documentation, new results were shared। So as I told, she was looking for a good documentation of this book
गुड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। वो सब एक देखना चाहते थे कि चलो ये सब एलिमेंट्स होंगे तो उसका कैसा होगा। ये एक न्यू रिजल्ट्स बाद में शेयर किए। एलिमेंट्स आफ्टर एलिमेंट्स, लॉन्ग वाज द रन, सूनर a radioactive child was going to be born। तो ये जो रेडियोएक्टिव चाइल्ड था उसका जन्म होने वाला था। So it was just an ordinary experiments going on, but then it totally turned into an extraordinary thing, and we will look into it how it go further from it. So the Marie Curie, while doing these experiments, used to say that the days were too short and the went by too quickly। उनके लिए दिन बहुत छोटे हो गए थे और बहुत जल्दी चले जाते थे, because she was enjoying her work, she was fully dedicated, और after all she was going to be getting the fruit of what she was doing day and night। So the astonishing results, now we will talk about the results। उन्हें कौन से रिजल्ट्स मिले वो हम देखेंगे। So first was like थोरियम, यूरेनियम की जो सीरीज में आता है रेडियोएक्टिव सीरीज में, थोरियम भी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा था आयनाइजेशन की। ऑफ कोर्स उसकी कैपेबिलिटी कम होगी यूरेनियम से, शो करता है। सो ये एक प्रॉपर्टी हो गई है एलिमेंट्स, थोरियम, यूरेनियम, ऐसे सब प्रॉपर्टीज हो गई एलिमेंट्स की। तो उन्होंने ये कॉइन किया पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम से कॉइन्ड दिस थिंग। क्योंकि बैक्वेरल को ये नहीं पता था कि थोरियम भी दे रहा है, उसको सिर्फ पता है यूरेनियम ऐसे रेस दे रहा है। he did some research but he does not find it interesting and उन्होंने ड्रॉप कर दिया है टॉपिक और he never touched it। But Marie Curie, she looked at, okay, like in periodic table we have elements like halogens or alkalis, they share a similar kind of properties। like उनके ग्रुप में ये टेबल पे ये कॉलम में आप देखोगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो उनको भी लगा कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, नेचर में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम जिसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि ऐसे आयोनाइज करने की, और उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया कि ऐसे 3-4 और एलिमेंट्स भी होंगे जो हमने अभी डिस्कवर नहीं किए। तो ये उन्होंने टर्म दिया रेडियो एक्टिविटी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम she coined this word radioactivity, and it is still great discovery। So now what she did is she tested the pitch blende, and it was found that it was 4 times more radioactive than uranium itself। अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग था। पिच ब्लेंड क्या है? ओर है, एक ओर होता है। मतलब अगर आप देखो, आपके पास एक पत्थर है जिसमें कुछ परसेंटेज सोना है, मतलब गोल्ड है। अभी वो पत्थर में से आपको गोल्ड चाहिए क्योंकि गोल्ड का मनी है, गोल्ड का इम्पोर्टेंस है। तो आप क्या करोगे, वो पिच ब्लेंड को रिफाइन करोगे, ऐसे कुछ करके केमिकल प्रोसेस करके आप गोल्ड को सेपरेट करोगे और आप गोल्ड को बेचोगे या ऐसा कुछ करोगे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, और इंट्यूटिवली आप क्या सोचोगे कि ये और तो कुछ काम का नहीं, इतना यूरेनियम काम का है, यूरेनियम में ज़्यादा एक्टिविटी है। आप ऐसा सोचोगे कि पत्थर में कैसे एक्टिविटी हो सकती है, यूरेनियम में एक्टिविटी है। लेकिन उसको रिजल्ट्स क्या मिले कि इट वाज 4 टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम। जो उसकी एक्टिविटी थी पिच ब्लेंड की, जो उन्होंने वो जो मेथड जो उन्होंने मेजर किया था, एक साइड स्टॉप वॉच रख के, तो उसकी एक्टिविटी 4 टाइम्स थी। अभी ये उनको बहुत पजल हुआ। अभी ऑब्वियसली उनको ऐसा लगा कि ये मेरे रिजल्ट्स में कुछ मेरे एरर की वजह से, मेरी एक्यूरेसी की वजह से एरर आ रहा है। So she did the same experiment 20-30 times, but she got the same results। तो उन्होंने सोचा ये मशीन नहीं काम कर रही है या क्या हुआ है। तो पियर क्यूरी ने मशीन भी चेक किया कुछ पूरा खोल के, लेकिन उन्होंने लास्ट में ऐसा कंक्लूड किया कि नहीं, ये पिच ब्लेंड में कुछ और है जो इतना रेडियो एक्टिव है जो हमें नहीं पता चल रहा है अभी। और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यूरेनियम पिच ब्लेंड में रह के ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो गया, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, एंड शी प्रिडिक्टेड कि अ न्यू इंटेंसिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट मस्ट बी देयर। इतनी स्मॉल अमाउंट में है कि हम उसको ऐसे ट्रेस भी नहीं कर पाए पिच ब्लेंड में। अभी तक किसी ने देखा नहीं, सिर्फ यूरेनियम ही है। पिच ब्लेंड में ऐसा देखा था सभी ने, पिच ब्लेंड एक और है और उसमें सिर्फ यूरेनियम है।
और इतनी स्मॉल अमाउंट में है, और इतनी स्मॉल अमाउंट में के होने के बावजूद इतना इंटेंस है कि उसकी वजह से लाइक उसकी रेडियोएक्टिव 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो उन्होंने ये डिस्कवरीज पेपर पब्लिश किया कि हमें ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, और इंस्पिरेटेड कि एक नहीं 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, कि वो हम देखेंगे कि क्यों 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी तो उसको इतना ही मालूम पड़ा है कि 4 टाइम्स रेडियोएक्टिव है पिच ब्लेंड जो ओर है। और ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया, न्यू एलिमेंट्स, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स एंड द प्रोपोजिशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ओर। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया अंडर, तभी वो सोसाइटी के मेंबर नहीं थे, मैरी क्यूरी वाज जस्ट अ ग्रेजुएट and she was not a member of society as she was also a woman and she was not as like highlighted person. तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया अंडर द नेम ऑफ हर मेंटर गैब्रियल लिपमैन। सो ये गैब्रियल लिपमैन थे उनके मेंटर, उनके अंडर उन्होंने पेपर पब्लिश किया। अब चालू होती है क्वेस्ट टू मिस्ट्री एलिमेंट। और तो पता चल गया, चलो ये 4 टाइम्स रेडियोएक्टिव है वो पता चल गया, अभी ये एलिमेंट और में है क्या, व्हाट वाज दैट। आपको भी पता चल गया होगा शायद अभी तक कि उसको एलिमेंट्स मिलने वाले, लेकिन वो कैसे हुआ क्या हुआ ये देखिए। तो वो सेपरेट था, तो अभी उसको एक गोल मिल गया कि अभी इसमें कुछ एलिमेंट्स है, अभी इस एलिमेंट्स को निकालूं कैसे। अभी इसको सेपरेट कोर में से सेपरेट करना it was a huge task, and I would say this was going to take 4 years to like separate all things, and वो एलिमेंट्स निकालने के लिए और 4 साल लगने वाले थे। तो ये ओर है पिच ब्लेंड, ओर ऑफ यूरेनियम। So Pierre covered his work on crystals and joined Mary for tracking the mysterious elements। तो यहाँ से उनको बहुत, अभी तो उन्होंने पूरा काम छोड़ दिया उनका, और he started working on the mysterious elements। क्योंकि the amount of effort that was needed was huge, and Pierre was very beloved to Mary, and they were both very caring for each other. So he thought he will abandon his work on crystals, and he joined Marie Curie for the search of these mysterious elements। So पहला स्टेप था इसका चूरमा का तोड़ना, we have to break that down। बाद में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो, से ट्राई टू डिसॉल्व देम, उसको डिसॉल्व करो। बाद में उसको डिफरेंट टाइप के केमिकल से ट्रीट करो, और उसको और सेपरेट प्रोपोर्शंस। अभी यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स के ट्रीटमेंट से बाद उनको ऐसे पोर्शन सेपरेट करने थे जो रेडियोएक्टिव थे और जो नहीं थे। जो नहीं थे उसको फेंक दो, ट्रैक द रेडियोएक्टिव सिग्नल एंड थ्रो अवे व्हाटएवर इज नॉट रेडियोएक्टिव। जो रेडियोएक्टिव था उसको रखो, जो नहीं है उसको फेंक दो। तो ये काम उन्होंने किया। दे सेपरेटेड 2 डिफरेंट प्रोपोर्शंस। उन्होंने 2 प्रोपोर्शन सेपरेट किए हैविंग रेडियोएक्टिविटी, और डिफरेंट थे दोनों की। जो दो प्रोपोर्शंस ने इक्वल अमाउंट के वॉल्यूम में उन्होंने सेपरेट की, और दोनों की रेडियोएक्टिविटी उन्होंने मेजर की, और दोनों की रेडियोएक्टिविटी डिफरेंट थी। तो ये क्या प्रपोज करता है कि ये पिच ब्लेंड में यूरेनियम तो है, लेकिन यूरेनियम के अलावा और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए। देयर आर स्टिल 2 more elements in this pitch blend, और for that she proposed that okay, now there are 2 different elements in this। And by the time of July 1898 they were able to announce the discovery of one of the new elements। एक एलिमेंट्स की रेडियोएक्टिविटी उन्होंने पहचान ली थी, और उन्हें सेपरेट अच्छी तरीके से सेपरेट करने में सक्सेस हो गए थे, और में से क्योंकि उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था रेडियम से, दूसरा एलिमेंट जो रेडियम था, और वो एलिमेंट उन्होंने सक्सेसफुली सेपरेट कर दिया था, और उन्होंने वो नाम दिया पोलोनियम। अभी जब मैरी क्यूरी थे पेरिस में, तब रशिया ने बहुत मतलब वॉर्सो पे और कब्जा कर दिया था। तो ये पोलैंड जो था, पोलैंड दूसरा खुद का एक कंट्री था,
उसका नेम लाइक यू कैन से वाज आउट ऑफ मैप उसका लाइक एक्सिस्टेंस बोलते हैं ना निस्त नाबुद ऐसा था उसको कुछ वैल्यू नहीं था तो उन्होंने उसके होमलैंड के लिए उन्होंने अपने होमलैंड के लिए ये उनको डेडिकेट करते हुए ये पूरा एक एलिमेंट का नाम पोलोनियम रख दिया था मैरी क्यूरी ने कि आई वांट टू रिस्पेक्ट माय होमलैंड और उनका नाम फिर से लाने के लिए पोलैंड का नाम फिर से लाने के लिए उन्होंने ये एक एलिमेंट का नाम पोलोनियम रख दिया। पोलोनियम इतना प्योर नहीं था लेकिन वो बल्क में था इसलिए वो इससे सेटिस्फाई तो कर दिया कि ये एलिमेंट है लेकिन उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस नहीं मिल पाए थे बट केमिस्ट सोसाइटी में वो सेटिस्फाई हो गया था। दूसरा जो था जो रेडियम था दो एलिमेंट्स थे पोलोनियम और दूसरा जो रेडियम था जो नेम करने वाला तो दूसरा एलिमेंट था वो 1000 टाइम्स मोर देन द यूरेनियम उसकी एक्टिविटी 1000 टाइम्स मोर सो इट वाज आपको पता चला ना कि वो 4 टाइम्स जो रेडिएक्टिव था बीच प्लेन में वो किसकी वजह से होगा तो इट वाज मोस्टली ड्यू टू द रेडियम बिकॉज उसकी एक्टिविटी 1000 टाइम्स मोर देन द यूरेनियम थी। आप सोच सकते हो कितना रेडियोएक्टिव तो लेकिन क्या ये इतना प्योर होगा कि हमें स्पेक्ट्रल लाइन दे सके तो आंसर वाज यस एंड इट गेव अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ऑल्सो ये रेडियम था और उन्होंने जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उस जमाने में जो था उसकी मदद से उन्होंने देखा कि ये रेडियम की सीरीज में एक बैरियम है ऐसी सीरीज में टॉप टू बॉटम तो ये बैरियम भी ऐसे बैरियम का जो स्पेक्ट्रम है देखो ये लाइंस if you see color wise position wise they had same kind of properties but the lines were unique the pattern was unique and therefore it suggested indeed ऐसा कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैटर्न नहीं है अभी तक पीरियोडिक टेबल में और ये रेडियोएक्टिव है और ये पिचक्रम में से मिला है और ये ऑफ कोर्स एक रेडियम होना चाहिए और ये उन्होंने दिया मतलब न्यू एलिमेंट होना चाहिए और इट वाज एविडेंस दैट इंडीड दे हैव टू न्यू एलिमेंट्स one was polonium which was already separated and discovered and named and second one they named as a radium spectral line shows traces of barium but was totally unique and radium was born लेकिन केमिस्ट का दिल थोड़ा दिल मांगे मोर जैसा था तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं ये अपने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस दिए हमको ये नहीं चलेगा आप ऐसा कुछ दो जो हम ऐसे छू सकें ऐसा पकड़ सकें ऐसा कुछ चाहिए था तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ दो दैट वी कैन वेट और वी कैन मेजर तो ये तो अभी बहुत क्योंकि आगे हमने डिस्कस किया था कि इट वाज वेरी स्मॉल इट वाज वेरी स्मॉल अमाउंट इतनी कम अमाउंट में था ये इतना इंटेंसिटी था आप कैसे निकालोगे तो फिर उन्होंने जो मैंने बोला था उसको ब्रेक डाउन करो बॉईल करो उबालो उसको हिलाओ और उसको केमिकल से ट्रीट करो फिर उसको ड्राई करने दो ड्राई करने के बाद उसको सेपरेट करो तो ये प्रोसेस पूरी उन्होंने ये लैब में की जो डेक जो कोल्ड यार्ड जैसा कुछ डेक था उनके पास लैब थी उनके पास तो यहाँ पे उन्होंने ये सब किया तो ये एक सीन है मूवी में से जो 1970s उसमें आई थी तो देयर वाज बॉयलर्स लाइक दिस and they used to stir all the day. This is Marie Curie, this is Pierre, and they did for this in this huge lab to process tons of pitchblende to get few grams of radium. Few grams of radium extract करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है like 4 years. ये उनके लिए 4 साल के लिए एक घर बन गया था ऐसा बोला तो सही है। ये ओल्ड शहर में उन्होंने 4 साल बिता दिए ऐसे ही पूरे दिन सुबह रात ऐसे देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन ये पिच प्लांट है ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ये बॉयलर्स पे उबाल रहे हैं और मिला रहे हैं सब एंड इट कंटिन्यूड फॉर 4 years एंड फाइनली ये जो जोड़ी थी क्यूरीज की दे सक्सेसफुली separated 1/10 of a gram of a radium chloride from 10 tons of pitchblende 10 tons of pitchblende में से 1/10 लाइक 1 ग्राम का 10वां भाग का अमाउंट में उन्होंने रेडियम सेपरेट किया था यू कैन सी द साइज
इतना रेडियम क्लोराइड उन्होंने सेपरेट किया था। और ये थे ग्रेजुएट स्टूडेंट विद द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू एलिमेंट्स। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट 2 न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर करके आ जाएगी। और इट वाज लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट एंड इट हैड टू बी रियली प्रेज्ड। और उनके बाद उनको 1903 में she also became the first woman in France to receive the doctorate degree in science. So she was officially accepted in the society and she had a great respect too. And काम बोलता है ऐसा कुछ था जो उन्होंने उनको भले से इतना फेवर नहीं मिला लेकिन उनका काम ही ऐसा था तो उनको रिकॉग्निशन देना ही पड़ा। तो देखो ये सीरीज है। सो एक एलिमेंट रेडियम, एक थोरियम ऐसी एक्टिविटी, एक यूरेनियम ऐसी एक्टिविटी। तो उन्होंने प्रपोज किया कि ऐसे 2 एलिमेंट्स भी यहाँ पे है जो रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ये पूरी सीरीज उन्होंने प्रपोज की, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। लाइक मेंडलीव पहले प्रपोज करते थे ना कि ये टेबल में ये एलिमेंट मिसिंग है, ऐसा एलिमेंट मिलेगा, तो उन्होंने ये थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ऐसी सीरीज प्रपोज की। और टू बी ऑनेस्ट मेंडलीव भी ऐसा इसको बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि लाइक एटम ऐसे रेडियो एक्टिव कैसे हुआ, ऐसे छोड़ थोड़ी सकते, वो ऐसे टूट नहीं सकते, रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते। We will discuss this part about this debate. And for the discovery of 2 new elements, she was awarded 2 Nobel Prizes. The first was Nobel Prize in 1903 on discovery of elements and giving birth to a completely new era in physics, the science of radioactivity. बस ये इसके बेसिस पर उन्होंने उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। और जो उन्होंने शेयर किया था पियर क्यूरी और हेनरी बेक्वेरेल के साथ, उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ शेयर किया। पॉइंट ये था कि वो उस ज़माने में भी नोबेल प्राइज़ कभी भी किसी को वुमेन को दिया नहीं गया। तो तभी तो लाइक बोलते थे कि लाइक नोबेल प्राइज़ इज सो मच high respect for a woman and she could not she had to be ignored or something like that. तो फ्रेंच जो मेंटालिटी थी, जो फ्रेंच पीपल की जो मेंटालिटी थी, दैट वाज सो लाइक नैरो। एंड उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ में मैरी क्यूरी का नाम पहले नहीं लिखा कि मैरी क्यूरी को नहीं देंगे, पियर क्यूरी और हेनरी बेक्वेरेल को नोबेल प्राइज़ दे देंगे फिजिक्स में। लेकिन पियर क्यूरी जो he was a man who was truly a gentleman, and he clearly wrote to the Nobel Prize committee that I will not accept the prize if Marie Curie is not included in this Nobel Prize. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये नोबेल प्राइज़ नहीं एक्सेप्ट करूँगा अगर मैरी क्यूरी को भी इतना नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। तो उन्होंने खुद ऐसा लिख दिया कि ये वर्क, ये आइडिया सब मैरी क्यूरी का था, मैंने तो सिर्फ थोड़ा हाथ बटाया था उनके काम में। आई वॉज नॉट like father of this idea, but she was the true legend and she had a concept like uranium और thorium ऐसे जो elements explain the 2 elements और हो सकते हैं, concept idea सब उनका। तो by that time they the Nobel Prize committee had to accept and they jointly awarded the Baer and Marie Curie and Henry Becquerel the Nobel Prize in Physics। फिर आगे चल के 1911 में उनको खुद को पर्सनली नोबेल प्राइज दूसरा मिला केमिस्ट्री में फॉर द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम, और एक मेथड बताने के लिए कि अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो और में से, और केमिकली आप कैसे ट्रीट करके कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो उन्होंने उसके वजह से उनको मिला। अभी आप आगे मैंने आपको बोला था कि 6 साल जो वो ऐसे रही बिना कुछ करे, सिर्फ गवर्नेंस वर्क करके, तभी उन्होंने जो नॉलेज इक्विप किया था फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में, तो ये आगे चल के केमिस्ट्री में जो स्पेसिफिकली उनको नॉलेज जो गेन किया था, तो आगे चल के उनको ऐसे काम लगा। और शी टोटली डिस्कवर न्यू वे ऑफ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये दूसरा नोबेल प्राइज उन्हें मिला, केमिस्ट्री में मिला, और ये उनको खुद को मिला, किसी और को नहीं। She shared with no one। फिर दूसरा था ल्यूमिनस ग्लो ऑफ द चाइल्ड। ये चाइल्ड तो 2 थे लेकिन उनका फेवरेट चाइल्ड रेडियम था, और
ये कोई भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव दे दो तो उसके प्रॉपर्टीज से ल्यूमिनस ग्लो। ऐसा ये देखो ये सब पेसल्स है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक पार्ट रह गया हो थोड़ा, तो ये ऐसा ग्लो दिख रहा था। तो she used to stare those vessels and she felt very delighted and वो स्पेशली रात को देखने आती थी रात को लैब में कि कैसे ग्लो कर रहा है। एंड देयर वाज an insight what made this glow. No interaction with environment, no changing, not the element is not changing shape, there is no interest in interaction with element, तो ऐसा ग्लो हो कहाँ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन क्यों ऐसे वायलेट हो रहा है? क्या ऐसे अंदर से ऐसे ग्लो थोड़ी कर सकता है ऐसा कुछ? तब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि रेडियो एक्टिव मतलब क्या बोलते हैं कि एलिमेंट का ट्रांसम्यूटेशन होता है, वन एलिमेंट इज डिकम्पोजिंग टू अनदर, और उसकी वजह से ये जो एनर्जी जो मास कम हो रहा है एलिमेंट का, साइज चेंज हो रही है, शेप साइज चेंज हो रही है, तो वो उतनी मास के चेंज में उतनी एनर्जी बाहर निकल रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि ये एनर्जी कहाँ हो रही है, तो जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ डिकम्पोज हो रहा है दूसरे एलिमेंट में, स्मॉलर एलिमेंट में, और वो जो मास डिफरेंस है वो करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी इज क्रिएटेड एंड दैट एनर्जी इज सीन एज दैट ग्लो। वो एनर्जी ऐसे ग्लो में दिख रही है। So she diligently proposed that with confidence that the elements are transmutating by the means of radioactive decay. तो ये यहाँ पे टर्म हुआ डीके फर्स्ट टाइम, रेडियोएक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी तो सुनी थी कि ऐसे छोड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि ये डीके भी होते, ये ट्रांसम्यूटेड मतलब यूरेनियम का ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, लाइक लास्ट में वो लेड पे आके ख़त्म होता है यूरेनियम, फिर बाद में थोरियम ऐसे डिकम्पोज होते होते वो डेड पे स्टेबल हो जाता है। तो ये टाइप जो एलिमेंट्स है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो स्पेसिफिकली डीके करते हैं, मतलब उनके ऐसे फ्रैगमेंट्स धीरे 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 वो डीके होते हैं, और ये डीके में मास डिक्रीज में वो इतनी एनर्जी बाहर छोड़ते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा था, सब फॉलो हो रहा था, सब एक्सेप्ट। और वो टाइम पे कुछ साइंटिस्ट ने अपोज किया था, स्पेशली द फादर ऑफ पीरियड टेबल मेंडलीव। उन्होंने बोला था कि मैटर इज लाइक जो एटम होता है वो कांस्टेंट होता है, लाइक एटम डज नॉट ब्रेक डाउन। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि चलो फायर करने लगा कि उसको ब्रेक होना है। मेंडलीव strongly disagreed with this concept, but eventually it has to be understood as only mom can understand his child at first. तो एक माँ थी जो जिसने अपने चाइल्ड को अंडरस्टैंड किया था, और उनको पता था कि नहीं ये कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी में नहीं दिखा, और दैट इज ट्रू। और इसकी वजह से पूरी एक ब्रांच ओपन हो गई कि लाइक रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, एलिमेंट्स कैन ब्रेक डाउन, एक एलिमेंट्स का दो भाग में फ्रैक्शंस हो सकता है और एनर्जी क्रिएट हो सकती है। और रेडियो एक्टिव डीके transmutating of new elements, creation of new elements by bombarding, ये पूरी न्यू एक्सीलरेटर फिजिक्स की जो एक्सीलरेटर फिजिक्स जो होते हैं और उसके एप्लीकेशंस वो ऐसे ब्रांच खुल गई फिजिक्स में। So this was the like mom who not only gave birth to two childs, radioactive child, but also mother of physics, modern physics. So ये था, और ये एलिमेंट्स म्यूटेबल एलिमेंट्स से बोलते हैं। So we surely like to thanks with this mother, and she opened the new gates. What is inside the atom? एटम के इनसाइड ऐसा क्या है, कंपोजिशन क्या है कि वो डीके हो रहा है? व्हाट इज डीकेइंग? व्हिच पार्टिकल्स आर शूटिंग? क्या डीके क्या हो रहा है? तो वो एटम के इनसाइड क्या है वो लाइक दैट वाज होल्ड ग्रेट insight for this elements. So this was mother of this Elena and mother Eva, and this they were two child of her, and this was the third one, Polonia, and this was the fourth. So she was mother to four childs basically. We can say like that. And lastly at the and she is after like discovering and making that official announcement that this type of elements are there, she was greatly acknowledged and respected. And after that, she also
Solvay. She also was a part of a Solvay Congress meeting, which was saved the great pictures of a whole bunch of scientists together. And और ये कॉन्सेप्ट जो था कि दो एलिमेंट्स फ्रैगमेंट हो सकते हैं, डिके होते हैं, तो ये पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का लाइक यू कैन से 1930s and 1920s was decades for the nuclear physics. बाद में हम देखेंगे मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी हुआ था, जो ये पूरी ये डीके और ये एलिमेंट्स का फ्रैगमेंटेशन, एलिमेंट्स को तोड़ो, यूरेनियम को तोड़ो और उसका एनर्जी जो क्रिएट होगी वो बॉम्ब में यूज़ होगी, ऐसा सब हुआ था। लीसा माइटनर करके भी एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन का एरिया बताया कि ऐसे एलिमेंट्स को फिजन होता है और उसके वजह से ये एलिमेंट्स बनते हैं, एनर्जी निकलती है। तो ये पूरा E is equal to mc स्क्वायर का प्रूफ भी है ये डीके ऑफ एलिमेंट्स और उनका न्यूक्लियर फिजन और वो सब। तो शी वाज ट्रूली अ लेजेंड एंड शी शोड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। लिटिल क्यूरीज क्या है, तो जो वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, तो उसमें एक मैरी क्यूरी उनकी बेटी, उन्होंने हेल्प के लिए लाइक बहुत कंट्रीब्यूशन दिए थे। मतलब उन्होंने क्या किया था, शी यूज पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स इन द फील्ड टू हेल्प सोल्जर्स। तो अगर कोई ये ऐसी मतलब गाड़ी थी जिसमें वो बैठते थे, पीछे मशीन थी, ऐसी मशीन थी, ऐसे एक्सरेज का यूज़ करके उन्होंने सब सोल्जर्स की ट्रीटमेंट और उनका जो इफेक्टिव पार्ट्स था उसके इरेडिएट करके उनको हेल्प किया था। और शी वॉज दिस द जोड़ी वॉज टर्म्ड एज अ लिटिल क्यूरीज। उनकी बहन और ये और उनकी बेटी इरिना क्यूरी, जूलियट क्यूरी, और उनको लिटिल क्यूरीज ऐसा टर्म दिया था ये बहन को ऐसे जो हेल्प कर। और बाद में इसके वर्ल्ड वॉर के बाद सी एडवांस रिसर्च इन रेडियम एंड रेज फंड्स टू बाय रेडियम और एस्टैब्लिश रेडियम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वॉर्सो। शी डाइड ऑन 4th July 1934 ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया डिजीज। ये डिजीज भी उनको ऐसा था कि लाइक सोते समय भी वो रेडियम का एक पैलेट उनके साथ में रखते थे, रेडियम का लाइक लिटिल वेसल में वो रेडियम रख के ऐसे साथ में सो जाते थे। दैट एलिमेंट वाज सो क्लोज टू हिम दैट वो पूरे दिन उनके साथ रहते थे। और इसी कारण से लाइक रेडियम की वजह से उनको लाइक ये डिजीज हुआ, रेडिएशन की वजह से, हाई रेडिएशन की वजह से। ये प्लास्टिक एनीमिया हैज बीन सीन द 1000 टाइम मोर रेडियोएक्टिव देन यूरेनियम। लेकिन लाइक उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम पे इतने प्रिकॉशंस नहीं थे एक्सरेज और सबके, और मैनी डॉक्टर्स डाइड आल्सो ड्यू टू दिस रेडिएशंस एंड टू दिस डिजीज, नॉट दिस स्पेसिफिक डिजीज बट दिस रेडिएशन की वजह से। और ये डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो गई July 4, जो आज का दिन है, लेकिन दूसरे 1934 में। और we should not forget this lady who not only gave a new science to this world but was very kind, generous, not helped people like soldiers in the time of crisis, and she was so polite and knowledgeable person. And as I told, she died due to long exposure. So this was the story of mother of modern physics and her child, a radioactive child, how she discovered those radioactive elements, कैसे हुआ Nobel Prize, and I would like to mention this last quote of her, like you cannot hope to build a better world without improving the individuals. आप अच्छी दुनिया ऐसे अच्छा सराउंडिंग ऐसे ही नहीं बना सकते अगर आप में कुछ कमी हो। आप खुद को पहले सुधारो। आप यू इंडिविजुअल्स विदाउट इम्प्रूविंग द इंडिविजुअल्स, आप आजू बाजू के लोग हैं उनको थोड़ा अच्छे से ज्ञान दो, उनको सुधारने की इम्प्रूव करो। टू दैट एंड ईच ऑफ अस मस्ट वर्क फॉर हिज ओन इम्प्रूवमेंट। खुद की इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना चाहिए। एट द सेम टाइम शेयर द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी
एट द सेम टाइम आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. Our practical duty being to aid those to whom we think we can be most useful. अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की अलग अलग होती है. आप जो भी फील्ड में काम करो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी हेल्प करने की अलग अलग होती है. Like we are Universal Science Forum is like working specifically for creating empowerment to the science, for spreading science, creating the like awareness of importance of science and modern education. So it is kind of our general responsibility to help this kind of talks and to share the science in the environment, in the surroundings, to the people who are unaware of this kind of revolutions, of this kind of discoveries, and of this kind of achievements. So I hope I was useful today. Uh, I don't know at what level I bored you or did not interested you, but I think this was the best thing you should know, that this kind of person existed, many other kind of scientists, and you should really know how the hurdles they faced, how they discovered new things, what was the insight, what was the thinking. As this not only especially this helps especially for the science aspirants or the future scientists or future teachers, that they can share this knowledge to the children that they are in the primary education or secondary education. They can share this story to them, and it would be like, who knows, there will be a next inspiration and there will be a next Marie Curie or Albert Einstein. No one knows. So thank you for attending my talk. I will stop sharing and I will be on the main screen to take your questions. Thank you. Dilip bhai? Hello. हाँ जय, कोई क्वेश्चन तो अभी आया नहीं है. Okay. We will wait for 5 to 10 minutes. If there is any question, we can answer that. Otherwise, we will stop the recording and end the talk. I was clear, right, Dilip bhai? टॉकમાં કદાચ કશે કંઈક નેટવર્ક ઇશ્યુઝ કે એવું કંઈ થયું નથી ને? ના, નથી થયું. બરાબર રહ્યું ડિસ્કશન. જય, મારા आपने કદાચ અવાજ ખોટું એવું કંઈ? नहीं, एकदम बराबर रहा. आपने मैडम क्यूरी के लाइफ के बारे में, उसका मैडम क्यूरी का लाइफ में तो बहुत सारा काम है, बहुत कुछ काम किया है पूरे जीवन में. सब कुछ डिस्कशन में कवर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपने अच्छी कोशिश की कि मैडम क्यूरी का लाइफ के बारे में पूरा बताने की. और मैं जो मानता हूँ, समझता हूँ कि मैडम क्यूरी जो आपने भी बताया आपके डिस्कशन में कि किस तरह उसने पूरा एक स्ट्रगल किया रेडियम की खोज करने के लिए. उस जमाने में आज हम देखते हैं तो लड़कियां महिलाएं जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो इतना मुश्किल नहीं है. उस जमाने में तो लड़कियों को पढ़ना मना ही था, स्कूल में एडमिशन लेना ही मना ही था. उस जमाने में यूनिवर्सिटी में जाना भी पॉसिबल नहीं था लड़कियों के लिए. तो मैडम क्यूरी घर में छुप छुप के पढ़ाई करते थे. वो करते करते वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए. एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उसके बारे में बोला था कि अगर मैं लड़की होता तो मैं शायद एक काम नहीं कर पाता जो मैडम क्यूरी ने किया है. तो वो मैडम क्यूरी ने और सिर्फ आविष्कार किया रेडियम का, उतना ही नहीं, उसका जो लाइफ का जो पर्पस था, उसका जो ध्येय था, वो विज्ञान को समाज के लोगों के तक ले जाना. विज्ञान का जो फल है, उसका जो फ्रूट्स है,
वो पूरी सोसाइटी को मिलना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई नया कुछ काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना मेडल मिला, कितना सर्टिफिकेट मिला। लेक्चर अटेंड करने के लिए भी सर्टिफिकेट का वेट करते हैं हम लोग। कुछ नया कुछ कर दिया तो पैटर्न निकालने का कोशिश करते हैं। और यूनिवर्सिटी के बीच में एक स्पर्धा भी चलती है कि हमारा कितना पैटर्न है। उसके सामने मैडम क्यूरी ने एक मिसाल खड़ा किया कि उसका खुद का घर में खाने पीने का भी इंतजाम नहीं था, फिर भी उसने पैटर्न निकाल के पैसा कमाने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने पैटर्न करने हाँ, की कोशिश नहीं उसके कलीग लोग ने एडवाइस किया कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, अगर आप पैटर्न निकालो और पैसा जो मिलता है आप खुद के लिए यूज मत करना, आप उसके लिए और कुछ आविष्कार करने के लिए यूज करना। तो मैडम क्यूरी ने मना किया कि मैं और वो आप एग्जाम्पल अगर आप सेट। देखो ना, अगर आप देखो कि उन्होंने पैटर्न नहीं किया तो वो पैटर्न नहीं करने के बाद ये रेडियम का जो जो आप बोलो कि जितनी जगह पे ज़्यादा दिखा, बहुत जगह पे रेडियम यूज़ होने लगा था क्योंकि इतना पैटर्न नहीं था, कुछ ऐसा चार्ज नहीं था, तो सभी जगह रेडियम स्प्रेड मतलब बहुत जगह पे फेमस हो गया रेडियम। बहुत सभी यूज़ करते थे, सभी को लाइक इट वाज वेरी क्या बोलते हैं उसको, यूनिक ऐसा नहीं था, सभी जगह सबको मालूम था रेडियम क्या था, सभी को पता चल गया था रेडियम का क्या था। इसलिए ये पैटर्न नहीं करने से एक फ़ायदा भी हुआ था कि इट वाज वर्ल्ड वाइड, इट वाज फेमस वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ऐसे चार्ज नहीं देना था कुछ लेने के लिए, ऐसा मतलब कोई भी चलो दे दो रेडियम खरीद के, वो रेडियम मैन्युफैक्चर बना के ऐसे सेल करता था ऐसा। तो ये मैडम क्यूरी क्वेश्चन ने आया था, बोला मैंने कि देखा नहीं। मैडम क्यूरी ने जो रिप्लाई किया कि पैटर्न निकालना वो विज्ञान की भावना के विरुद्ध है, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये रेडियम का यूज मेडिकल फील्ड में होने वाला है, तो हाँ उसका वही। लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, इसलिए मैं पैटर्न नहीं करने की फेवर में नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि उसका पूरा जीवन उसके लिए ही दे दिया, रात दिन खाना पीना, अपने दो बच्ची थी, वो पर्सनल लाइफ को छोड़ के पूरा जीवन और एक विज्ञान के पीछे उसने से किया। और तो एक बात वो भी है कि लाइक पियर क्यूरी की डेथ 1906 में हो गई थी। वो हॉर्स ड्राइवन जो कार्ट होती है ना, हॉर्स घोड़ा गाड़ी, उसके साथ टकरा के उसकी डेथ हो गई थी पियर क्यूरी की 1906। तो 1906 से उन्होंने 1934 पूरे साल खुद बिता मतलब अकेले बिताए, और जो काम उन्होंने साइंस के लिए किया वो वही कर पाते जिसको ट्रूली साइंस के लिए लव है। अदरवाइज वो इतने बिलोवड पर्सन थे जो उनके हस्बैंड, उसके बाद वो टोटली ब्रोक हो जाती, वो भी गई थी। और ऐसे भी चांस किस्से बने थे कि उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ थी, मतलब एक उनके पियर क्यूरी के भाई के साथ उनकी रिलेशनशिप चालू हो गई थी, और उसकी वजह से उनको बहुत ऐसे डिसरिगार्ड भी किया गया था कि आपने किसी की शादी तुड़वा दी, ऐसा कुछ। लेकिन उसके बावजूद उससे ऊपर आके वो स्ट्रगल्स फेस करके उससे बाहर निकल के उन्होंने जो किया, उनकी बेटी के साथ वो मेडिकल जो एक्सरे यूनिट्स हो, जो मोबाइल यूनिट्स हो, फील्ड पे ऑन फील्ड पे ले जाके सोल्जर्स की ट्रीटमेंट की, that was truly remarkable. Like it was speechless, and the way she worked for others, the way she worked for science, it is truly remarkable. Remarkable. Thank you, Meenakshi. Anyway, कोई क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। We'll wait for a few minutes and then we'll end the talk. એક તમે અત્યારે કઈ ટોક ક્વેશ્ચન અહીંયા મૂકેલો મેગ્નેટિઝમ વાળું કે મેં વાંચેલું નહીં, તમે પાછું મૂકી શકો છો? मैग्नेटिज्म में भी हाँ उन्होंने रिसर्च मतलब किया था मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी स्टील की, उसके ऊपर उसने रिसर्च किया था। वो उतना वो नहीं किया था एक्सैजरेटेड, तो उस पर भी उसने किया था। और पियर क्यूरी वाज आल्सो वर्किंग ऑन द साइड ऑन दिस टॉपिक्स,
एंड शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम आल्सो। उनके पेपर उसने रीड किए थे पियर क्यूरी के, और उसके बाद में मैग्नेटिज्म में ज़्यादा काम किया था, ज़्यादा काम नहीं किया था लेकिन किया था। और बाद में उनको ये फील्ड इसमें इंटरेस्ट आया, और उन्होंने कुछ नया देखा कि ये कुछ नया है, इसलिए उन्होंने उसमें जंप किया एंड शी चेंज द वर्ल्ड। प्रॉपर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, उस पर रिसर्च किया। ठीक है जय, और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू जय, और इतना सुंदर ढंग से मैडम क्यूरी के लाइफ के बारे में बताने के लिए। और थैंक यू टू ऑल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजकल इसमें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी समय निकाल के जो हमारे साथ जुड़े हैं सबको थैंक यू। और भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much. Bye bye. Cheers.